Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the basic of the microprocessor and microcontroller. As we know, microprocessor is the general term. It is also known as the CPU, Central Processing Unit. It is the brain of all computers and many household and electronic devices. Multiple microprocessors are used. These are the heart of the supercomputers and all type of computers. So basically, how the microprocessors are developed, that we can see initially 1970. Up to 1970, semiconductor technology has been developed. After that, computer start to develop. In the initial stage, the 1972 IIT Delhi first computer is established that have the space, occupy the space about one room. So initially there was a about 4004, that was the first microprocessor. Microprocessor is the major part of the CPU. जो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसका ये मेजर पार्ट है. आफ्टर द 4004, 804008, then there was the development 8085, then 8086, then 3020, 286, 386, 486 series, then Celeron processor. After that, Pentium processor, Pentium 1 to Pentium 4. After that, dual core processor, and after that, the modern computers, that are the i3, i5, i7 series computers are developed. So that is the journey of the last 50 years, that lot of microprocessors has been developed in the last 50 years for purpose of the controlling the different type of the task को डेवलप करने के लिए बहुत सारे माइक्रोप्रोसेसर्स हैं वो हमारे डेवलप हुए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ द माइक्रोप्रोसेसर वर्क. जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर होता है वो किस तरह से वर्क करता है. बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर एक्सेप्ट द बाइनरी डाटा that is in the form of the 10100001, that is data as input, process that data, and then provide output based on the instruction stored in the memory. The data is processed using the microprocessor arithmetic and logic unit. जो ALU होता है माइक्रोप्रोसेसर का इम्पोर्टेंट part, that calculate the calculations, and there is also the control unit and register array in the microprocessor. The register array process the data by a number of registers that act as a temporary fast access memory location. Actually, microprocessor contain the several registers, and our data, suppose that is the one data is stored in one register, another data is stored in another register. In this, suppose दूसरा data जो हमारे पास है 10111, that is stored in separate register. तो इस तरह से जो हमारा different data है वो different registers में store हो जाता है और माइक्रोप्रोसेसर उसको कैलकुलेट. तो माइक्रोप्रोसेसर इज ए जनरल मशीन दैट इज फाइंड इन द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर्स के अंदर सबसे बड़ा कार्ड मदरबोर्ड होता है वो माइक्रोप्रोसेसर ही कहलाता है. व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर? Computer system are not the only device that use microprocessor.
everything from smartphone to household appliances to car use microprocessor these days. Here are the few reasons why the microprocessor is used. They don't cost a lot. कॉस्ट ज्यादा होती है माइक्रो कंट्रोलर के कंपैरिजन में, बस लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इनकी कॉस्ट नहीं होती. दूसरा, दे आर फास्ट. दे मेक अवर प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट कर देते हैं. फास्टली हमारी एक्टिविटीज होती हैं. कंज्यूम लिटिल पावर. पावर का कंजम्पशन है वो लेस होता है. पोर्टेबल. इनको एक जगह से दूसरे जगह पर हम आसानी से ले जा सकते हैं. आजकल तो जो हमारे पास मोबाइल्स होते हैं और हमारे पास लैपटॉप होते हैं उनको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है. रिलायबल होते हैं. इनको हम एक बार, इनमें बहुत कम चांस होते हैं कि फॉल्ट अकर हो. और वर्सेटाइल. माइक्रोप्रोसेसर चिप कैन बी यूज्ड in numerous applications as the programming is changed. So in this manner the microprocessor is the important device और ये हमारा इस तरह से एक चिप और सर्किट के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है. Now what is the microcontroller? Microcontroller, because now the question arises, what is the need of the microcontroller? जब हमने माइक्रोप्रोसेसर को यूज कर लिया तो हमारे माइक्रोकंट्रोलर की क्या नीड हुई? Because the microprocessor has the lot of memory and its cost is high, about 5,000 rupees, 6,000 rupees, 7,000 rupees. So that is the reason, if the cost of the microprocessor is high, then we use such type of device that have the low cost. Suppose we want to handle the specific activity. अगर हमें एक छोटी सी कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कराना है, सपोज हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक वॉशिंग मशीन का हमको अलार्म बजाना है, तो वहां पर अगर हम पूरे माइक्रोप्रोसेसर के कार्ड को यूज करें, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर के साथ इसकी मेमोरी अलग से होती है, पावर सप्लाई है वो हम अलग से कनेक्ट करते हैं माइक्रोप्रोसेसर के साथ, एंड इट कंटेन द सेवरल टाइप ऑफ द चिप और कंपोनेंट हियर. तो इसलिए इट इज ए मिनिएचर डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक टास्क. अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर छोटा सा काम कराना है, हमें किसी टॉयज का, जैसे बच्चों के जो किड्स के टॉयज होते हैं उसको रन कराना है, क्लैप से टॉयज को चलाना है, तो फॉर डिफरेंट पर्पज वी कैन यूज द माइक्रो कंट्रोलर. The program is stored in ROM and generally does not change. माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रोम, मेमोरी, पावर सप्लाई और सभी चीजें एक ही कार्ड के अंदर इनबिल्ट हो जाती हैं. तो जो हमारा एमसी होता है, जिसको हम शॉर्ट में माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड एमपी. इट कंटेन ऑल द थिंग्स, टाइमर, मेमोरी, ऑल द थिंग्स इन द सिंगल चिप. तो देयर आर द लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर की होती हैं, लाइक द लाइट सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेज में, टेम्परेचर सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेज में, फायर डिटेक्शन एंड सेफ्टी डिवाइसेज में, ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस में, डिफेंस एप्लीकेशंस में. देयर आर न्यूमेरियस एप्लीकेशंस वेयर वी कैन यूज द माइक्रो कंट्रोलर. तो इस तरह से वी हैव सीन that what is the basic difference between the microprocessor and microcontroller में basic difference क्या होता है, कहाँ पर हम माइक्रोप्रोसेसर को यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं. माइक्रोप्रोसेसर है वो हमारा एक जनरल पर्पज डिवाइस है जिसको कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में, जहाँ पर कि हमको एक बड़ी टास्क को कंप्लीट कराना है, पर सपोज हम किसी मशीन को कंप्लीटली कंट्रोल कराना चाहते हैं, देन वी कैन यूज द, वहां पर हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज करेंगे. बट इफ वी वांट टू कंट्रोल द स्मॉल डिवाइस, तो वी यूज द माइक्रो कंट्रोलर. नाउ व्हाट इज द, जो हम स्टडी करते 8085, अब हम आगे पढ़ेंगे. 8085 इज द सिंपलेस्ट माइक्रो प्रोसेसर जिसको कि हम स्टडी करते हैं.
दैट इज ए 40 पिन। इस माइक्रो प्रोसेसर में एक 40 पिन की आईसी होती है, 40 पिन की आईसी होती है। तो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर आ गए, बट अभी भी हम ये सारा 8085 के रेफरेंस में इसको स्टडी करेंगे। इसी तरह से 8051, दैट इज द जनरल माइक्रो कंट्रोलर। तो हम माइक्रो कंट्रोलर के लिए 8051 को स्टडी करते हैं, और हम माइक्रो प्रोसेसर के लिए 8085 को स्टडी करते हैं। तो दीज वी विल स्टडी इन द डेप्थ, इनको हम डेप्थ में स्टडी करेंगे, जिससे कि ये हमें पता चल पाए कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। ओके, थैंक